Hello students, myself Rakesh Misra. Now I am going to describe you the different kinds of vegetative propagation. In previous video lecture I have described you the natural and artificial, two different kinds of vegetative propagation. Among them, the natural vegetative propagation may be vegetative propagation through root, stem and leaves, with example is over. Now I am going to describe you the artificial vegetative propagation. Now back to whiteboard in order to understand the basic key concept of different kinds of artificial vegetative propagation. As you all know, the grafting, layering, cutting and tissue culture are key features of artificial vegetative propagation. Now let me back on whiteboard in order to understand the key concept. Vegetative propagation it may be natural, artificial. Natural vegetative propagation by means of stem, by means of root or by means of leaves. Example of by means of stem is sugarcane, drumstick, rose, etc. By means of root, the ginger, sweet potato, etc. Leaves, begonia and bryophyllum. I think all about the concept of natural system of vegetative propagation is over. Very important is how do begonia and bryophyllum is perform the vegetative propagation. Listen carefully. When you clearly see the structure of any begonia or bryophyllum leaves, then you will find there has a notch, N-O-T-C-H, that responsible to grow a buds, later bud develop into new plants, and it will later detached from the main leaves in order to grow the new begonia plants. इसका मतलब ये जो नोच है, नोच ही जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट्स बनाने का काम करता है. कीप इन माइंड दिस नोच इज रेयर इन अदर प्लांट्स बट इट इज कॉमन इन बिगोनिया एंड ब्रायोफिलम. दिस रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्म द न्यू प्लांट्स बॉडी. नाउ बैक टू आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन. There are so many artificial vegetative propagation in biology, like the cutting, grafting, layering, and fourth one is tissue culture. Now one by one I will describe you the different kinds of cutting, grafting, layering and tissue culture separately. So back to the cutting. Actually cutting happened in those plants where the vegetative propagation occurs through stem. So in this way a young plants, that is live and healthy plants, are selected. Apart the different parts, only the aerial parts are selected in the cutting process, and then after selection make TS obliquely. ये TS कटिंग के लिए obliquely लिया जाता है. obliquely मतलब काटने के लिए आपको थोड़ा सा TS ऐसे नहीं रखना है. कैसे रखना है? इस तरह से रखना है. ठीक है, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कटिंग और स्लैंट कटिंग. इससे ये होगा कि थोड़ा सा एरिया इसका बढ़ जाएगा. ऐसे काटने से एरिया बढ़ जाता है और इसके बाद इसको प्लांट से सेपरेट करके दूसरी जगह पे ग्रो कराया जाता है. तो कैसे डिफाइन करेंगे कटिंग? कटिंग इज द सिंपल प्रोसेस टू डी अटैचमेंट आर्टिफिशियली एन ओल्डर पार्ट इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट प्लेट्स. लिख लेना कॉपी में जो मैंने बोला है. कटिंग इज द सिंपल प्रोसेस टू डी अटैचमेंट ऑफ एन ओल्डर पार्ट ऑफ प्लांट्स आर्टिफिशियली थ्रू द नाइफ और एनी शार्प ब्लेड in order to grow separately in separate part. ठीक है, अब यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या होगा कटिंग का? कटिंग किस में होता है सबको पता है. रोज में, ड्रम स्टिक में. देखो नेचुरल सिस्टम में अपने से टूट के गिरते हैं तो ग्रो करते हैं. आर्टिफिशियल में काटा जाता है. आर्टिफिशियल का मतलब कोई भी मैन मेड टेक्निक. इसके एडवांटेज क्या होगा? नो नीड ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस.
no need of extra effort, there is no need of two plants, single plants able to, no need of, लिख लेना कॉपी में, no need of two plants, no need of practice, keep in mind. Next, single plants able to produce large amount of प्रोजीनी प्लांट और प्लांटलेट्स, जो मैं बोल रहा हूं वही लिखना है आपको, ठीक है. नेक्स्ट वन, कटिंग रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ, रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ, प्रॉपर्टी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो कटिंग के लिए एडवांटेज में आते हैं, और यही सब में आएगा, लेयरिंग में, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है, थ्रू लीफ स्टेम रूट्स में, ठीक है, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, सब में यही कॉमन चीजें आती रहेंगी बार बार. तो ये कटिंग का प्रोसेस खत्म हो गया. अब आते हैं ग्राफ्टिंग. लिसन केयरफुली. ग्राफ्टिंग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. इसमें दो प्लांट्स को सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है. सपोज दैट ये प्लांट नंबर ए है, ये प्लांट नंबर बी, ठीक है. थोड़ा सा बी को मैं डिफरेंट कलर से बना दूं, बी को मैं ब्लैक कलर से बना दे रहा हूं. ये प्लांट नंबर बी है, ये प्लांट नंबर ए है. तो पहला क्या होगा इसका कॉन्सेप्ट ग्राफ्टिंग का, सिलेक्शन ऑफ टू प्लांटलेट्स, सिलेक्शन ऑफ टू प्लांट पार्ट, ठीक है. सेकेंड क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक. चौथा क्या है, थर्ड, सिलेक्शन ऑफ सियॉन. स्टॉक और सियॉन क्या होता है, वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, बार बार लाइव क्लासेस में पूछते हैं. स्टॉक क्या होता है, सियॉन क्या होता है. लिसन केयरफुली. सपोज दैट ये प्लांट है, ये रूटेड प्लांट है, इसको छेड़छाड़ नहीं करेगी, इसको ऐसे कट कर दिया, तो ये अब कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा. इसको मैं अभी उखाड़ा नहीं हूं, नहीं इसको डिस्टर्ब किया हूं, ये प्लांट है, और इसको मैंने ऐसे कट कर दिया और इसका एरियल पार्ट मैं ले रहा हूं, ठीक है. तो इसको जब एरियल पार्ट लेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है. ये मैंने बी का एरियल पार्ट लिया और ए का बॉटम वाला पार्ट लिया, यानी ग्राउंड पार्ट लिया. तो एक टॉप हो गया जो बी से आया है, और एक ग्राउंड हो गया, ग्राउंड वाला पार्ट जो ए से आया है. अब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा. तो यहां पे आपको एक वर्ड जानना है कि जिसका ग्राउंड वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे स्टॉक. द ग्राउंड पार्ट और बॉटम पार्ट और बेस ऑफ द प्लांट इज नोन एज स्टॉक. स्टॉक आर बेस ऑफ प्लांट. और सियॉन, जिसका टॉप पार्ट होगा उसको बोलेंगे सियॉन, यानी कि ये टॉप पार्ट्स ऑफ प्लांट. तो ये आपको जानना है, ये आपको अच्छे से जानना है कि स्टॉक मीन्स होता है बेस वाला पार्ट और सियॉन मीन्स होता है टॉप वाला. अब इसको चिपका देते हैं अच्छे से, किसी गम का यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही रख के अच्छे से कपड़े से इसको बांध देंगे. कुछ समय के बाद ये दोनों का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपस में जुड़ जाएगा, और ये जो नया प्लांट बनेगा इसमें क्या होगा, मिक्स्ड प्रॉपर्टी आ जाएगी, मिक्स्ड प्रॉपर्टी, ठीक है. और मिक्स्ड प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर ये दोनों मैंगो की वैरायटी है, ये मान लो कि ये दशहरा है और ये चौसा है, तो नए प्लांट पे दोनों की स्पीसीज ग्रो करेगी. आपको पता है कि प्रेसिडेंट हाउस में एक मैंगो का पेड़ है जिसमें 36 टाइप्स के डिफरेंट मैंगोज देखने को मिलते हैं. तो ये डिफरेंट वैरायटीज जो है आपको अवेलेबल हो जाएगी एक ही तरह के प्लांट्स में, ठीक. तो यहाँ पे आपको क्या है कि स्टॉक और सियॉन का कॉन्सेप्ट ही समझना है. ग्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स इन ऑर्डर टू मेक अ मिक्स्ड प्रॉपर्टी, ठीक. इसका भी एडवांटेज वही होगा, बस इसमें एक्स्ट्रा एक एडवांटेज जोड़ लेना. इन दिस वे अ हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस, इन दिस वे अ हाइब्रिड प्लांट्स इज प्रोड्यूस, ठीक है. नेक्स्ट वन, अब आते हैं लेयरिंग. लिसन, व्हाट इज लेयरिंग. एक्चुअली इसमें प्लांट का फ्लेक्सिबल पार्ट
प्लांट के मेन पार्ट से ही सेलेक्ट किया जाता है और उसको जमीन में दबा दिया जाता है, जिसको कहते हैं लेयरिंग। देखो मैं इसको बता दूंगा, डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। सपोज दैट ये प्लांट है, ठीक है, और इसका कोई एरियल फ्लेक्सिबल पार्ट है जिसको खींच के मिट्टी में दबा दिया। खींच के इसको क्या किया, ये मान लो लीव्स वगैरह है और इसको क्या किया, खींच के मिट्टी में दबा दिया। सपोज दैट ये क्या है, ये मिट्टी वाला पार्ट है, इतना ये मिट्टी में दब गया। तो कुछ समय के बाद क्या होगा, इसी दबे हुए पार्ट से न्यू रूट निकलेगा। तो कैसे हम जानेंगे ऊपर की न्यू रूट निकल गया? जब नीचे रूट निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यू क्या हो जाएगा, लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसको क्या किया जाएगा, यहीं से कट के अलग कर दिया जाएगा और इसको इतना पार्ट ले करके कहीं ग्रो करा दिया जाएगा। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला, सीधा सा इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग ऑफ एरियल एंड फ्लेक्सिबल पार्ट देन सेपरेट आउट इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांटलेट्स। दैट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग, क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रेसिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पार्ट्स later to grow new young one in order to form न्यू प्लांट्स। तो ये नया प्लांट्स बनाता है, ठीक है। इसका भी एडवांटेज और इसका भी सारी चीजें बिल्कुल कटिंग की तरह से ही होगा, ठीक है। डायरेक्ट इसमें काटा नहीं जाता, एरियल पार्ट को पहले प्रेस किया जाता है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसको आप लोग लिख लीजिए। इसका मैकेनिज्म पूछता है तो उसको लिख लीजिए कॉपी में। सिलेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पार्ट, सिलेक्शन ऑफ फ्लेक्सिबल पार्ट, सेकेंड प्रेसिंग ऑफ फ्लेक्सिबल पार्ट, थर्ड separation of flexible part, and fourth growing separately of new young one, of new young one। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिएगा। आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा बच गया टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं डिस्क्राइब कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।